everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to start with a new topic, that is alcohols, phenols and ether. This is topic number 11 from Maharashtra State Board syllabus standard 12, that is the alcohol, phenols and ether. Okay, so let's begin with this new topic. The topics to be covered in this chapter are introduction, classification, nomenclature, alcohols and phenols, ethers and uses of alcohols, phenols and ether. Today we are going to deal with introduction, classification and nomenclature. So these are the three topics that we are going to study today. So let's begin with, can you recall? So what is the name and formula of second member of homologous series of alcohol? So you have studied homologous series in standard 11th. And this is a question from that part, that what is the name of the second member of homologous series of alcohol? So the first member is methanol and second member having 2 carbon is ethanol. So the second member of the homologous series of alcohol is ethanol and its formula is C2H5OH. Next question is, what is the structural formula of functional group of ether? So you need to tell the structural formula of functional group of ether. It is ROR. So the functional group of ether is ROR. Now both R can be alkyl, both R can be aryl, or one R can be alkyl and the other R can be aryl. Okay, next question, what is the name of the compound having OH group bonded to benzene? So if you remember from your 11th standard, that OH group attached to benzene is phenol. Okay, so phenol is the group where OH is attached to benzene. Now let's begin with introduction. So what is basically alcohol? So alcohols are organic compound whose molecules contain hydroxyl group, that is OH, attached to saturated carbon atom. सैचुरेटेड कार्बन एटम का मतलब जो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से ही जॉइंट है तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन. तो जब OH ग्रुप अटैच होता है सैचुरेटेड कार्बन एटम को, उस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल्स. ठीक है, बट ये OH ग्रुप अभी एरोमेटिक रिंग को भी अटैच हो सकता है. तो hydroxyl group can also be present in aromatic compound and they are of two types, phenols and aromatic alcohols. तो OH ग्रुप दो टाइप से आपके एरोमेटिक कंपाउंड को अटैच हो सकता है और उसके बेसिस पे दो क्लासेस है, एक है फिनॉल और एक है एरोमेटिक अल्कोहल. ये दोनों में ये डिफरेंस है कि फिनॉल में OH डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग को. तो ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हो जहाँ पे OH डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग को, तो उसे कहेंगे फिनॉल. बट if OH is attached to benzene ring via saturated carbon तो उसे कहेंगे aromatic alcohol. तो जब OH बेंजीन रिंग को इनडायरेक्टली अटैच है, मतलब बीच में कोई सैचुरेटेड कार्बन है, तो है एरोमेटिक अल्कोहल. तो अल्कोहल्स बेसिकली अब आपने 3 टाइप्स के देखे. एक अल्कोहल है नॉर्मल जहाँ पे OH सैचुरेटेड कार्बन को अटैच है, ये एलिफेटिक अल्कोहल हो गया. नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल. एरोमेटिक अल्कोहल में 2 टाइप है, फिनॉल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स. फिनॉल में OH डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग को और एरोमेटिक अल्कोहल में OH इनडायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग को. Next is, ethers are compounds which contain an oxygen atom bonded to 2 alkyl group or 2 aryl group or 1 alkyl and 1 aryl group. तो ईथर्स बेसिकली वो कंपाउंड है जहां आपका ऑक्सीजन दोनों साइड पे 2 अल्काइल ग्रुप को अटैच हो सकता है, या फिर एक अल्काइल एक अराइल को, या फिर दोनों अराइल ग्रुप को, तो उसे कहेंगे ईथर. सो दिस इज ईथर. सो ईथर 3 टाइप के
स्पेसिफिकली, जिसमें ऑक्सीजन दोनों अल्काइल ग्रुप का अटैच हो, दूसरे इसमें एक अल्काइल एक अराइल, और तीसरे इसमें दोनों अराइल. So this is the introduction of alcohol, phenol and ether. Now we move towards their classification. So first we will classify your alcohols and phenols. So alcohols and phenols can be classified as mono, di, tri और polyhydric compounds. ठीक है, तो alcohols और phenol क्या हो सकते हैं? मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक. ये किस बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि मोनो है, डाई है, ट्राई है, कि उसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है. इफ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्कोहल और फिनॉल होगा मोनो. इफ 2 प्रेजेंट है तो हो जाएगा डाई. इफ 3 प्रेजेंट है होगा ट्राई. 3 से ज्यादा प्रेजेंट है तो हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड. ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल दोनों के लिए कॉमन क्लासिफिकेशन है. यदि 1 OH मोनो, 2 OH डाई, 3 OH ट्राई और 3 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक. तो यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें देखो आप एक ही OH है, वेदर अल्कोहल और फिनॉल दोनों में एक ही OH है, इसलिए यहाँ पे है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल. इसमें इस अल्कोहल में 2 OH है, इस फिनॉल में भी 2 OH है, इसलिए हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल. तीसरे इसमें इस अल्कोहल में 3 OH है, इस फिनॉल में भी 3 OH है, तो ये हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल. ठीक है, और 3 से ज्यादा होता तो पॉलीहाइड्रिक. नेक्स्ट, अब monohydric alcohols can be further classified on the basis of hybridization state of carbon atom to which hydroxyl group is attached. तो हमने अभी पढ़ लिया कि अल्कोहल और फिनॉल मोनो, डाई, ट्राई इसमें क्लासिफाइड होते हैं. फर्दर मोनो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे किया जाता है कि आपका OH ग्रुप किस टाइप ऑफ कार्बन को अटैच है. वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को. तो उस बेसिस पे आप फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे. ठीक है, तो यदि आपका OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है तो सो अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH बॉन्ड, मतलब OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो उसमें होता है प्राइमरी अल्कोहल, जहां पे आपका OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो है प्राइमरी नेचर. तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक और कार्बन को अटैच है, इसलिए इसे कहेंगे प्राइमरी. इफ कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन सो इट इज प्राइमरी, और उस कार्बन को यदि OH अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल में आपका जो कार्बन है 2 और कार्बन को अटैच है, तो आप देख सकते हो ये कार्बन 2 और कार्बन को अटैच है, इसलिए सेकेंडरी नेचर हुआ, और इस कार्बन को जो अटैच OH है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल. और थर्ड वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो आपका गिवन कार्बन 3 और कार्बन को अटैच है. सो इफ योर गिवन कार्बन इज अटैच टू 3 मोर कार्बन, और उस वाले कार्बन को यदि OH अटैच है तो हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल. तो आपके अल्कोहल यहाँ पे हैं 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो प्राइमरी अल्कोहल में OH प्राइमरी कार्बन को अटैच रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच होगा, टर्शरी अल्कोहल में OH टर्शरी कार्बन को अटैच होगा. अब फर्दर इसका क्लासिफिकेशन, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का क्लासिफिकेशन फर्दर अलाइलिक और बेंजाइलिक में होता है. सो इफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कैरिंग OH इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. इसका मतलब ये है, सपोज आपका एक कार्बन है जिससे OH अटैच है, और वो कार्बन फर्दर आपके डबल बॉन्ड को अटैच होगा या फिर बेंजीन रिंग को अटैच होगा, उस बेसिस पे वापस इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है. ठीक है, तो आपका सपोज ये वाला अल्कोहल है, अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी, जिसको OH अटैच है, और ये वाला कार्बन फर्दर किस टाइप को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक. उस बेसिस पे आपके 2 अल्कोहल से अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल. अलाइलिक अल्कोहल में जो OH है वो अटैच तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को. देखो आपका OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, बट फर्दर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 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 डबल बॉन्ड को अटैच है, और इसलिए हम इसे कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल. तो अलाइलिक अल्कोहल बेसिकली वो अल्कोहल है जहां पे OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर आपके डबल बॉन्ड को अटैच होता है.
ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें OH अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, और वो कार्बन फर्दर अटैच होता है एरोमेटिक रिंग को। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका OH तो अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को, बट आपका ये कार्बन फर्दर अटैच है बेंजीन रिंग को, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक। तो आपको देखना है जब आपके पास बेंजीन और कार्बन वाला ग्रुप अटैच प्रेजेंट है और उसे OH अटैच है तो हो जाएगा बेंजिलिक, और यदि आपके पास डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट है और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को OH अटैच है तो हो जाएगा अलाइलिक। तो दिस इज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन OH बॉन्ड, मतलब आपका OH डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होगा। तो OH जब डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होगा तब उसे कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। तो अभी आपको 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन से? अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक। तो अलाइलिक मतलब क्या? अभी मैंने बताया डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उससे आपका एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है और उसको OH अटैच है, तो ये हो गया आपका अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। बेंजाइलिक मतलब आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उसको आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच है और उसे OH अटैच है, तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। और विनाइलिक मतलब OH डायरेक्टली अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल में OH इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और इसलिए ये विनाइलिक। अलाइलिक में डबल बॉन्ड को तो OH अटैच होता है वाया मतलब इनडायरेक्टली बाय CH2, और बेंजाइलिक में OH इज अटैच टू Ar वाया CH2। ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको ये सबको क्लासिफाई करना है, तो अब हम इसे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला है ये वाला। सो क्लासिफाई क्या करना है, आपको पहले बताना है कि ये अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, और उसके बाद बताना है ये अलाइलिक या बेंजाइलिक है। तो फर्स्ट वाला, तो आप देखो ये OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो एक ही और कार्बन को अटैच है। ठीक है। OH ऐसे एक कार्बन को अटैच है जिसको एक और कार्बन अटैच है, सिर्फ एक और, तो ये हो गया प्राइमरी। ठीक है। क्यों प्राइमरी? क्योंकि OH ऐसे वाले कार्बन को अटैच है जिसको एक ही और कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी। अब ये अलाइलिक की बेंजाइलिक, तो OH इज इनडायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड वाया CH2, तो ये हो गया अलाइलिक। तो पहला वाला अल्कोहल कौन सा है? इट इज प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, ऐसे लिखोगे। फर्स्ट अल्कोहल इज प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट वाला, अब वापस OH देखो, OH एक ऐसे कार्बन को अटैच है जिसको 2 डिफरेंट कार्बन अटैच है। देखो ऐसे वाले कार्बन को अटैच है जिसको 2 डिफरेंट कार्बन अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन को अटैच है। और अब आप देखोगे कि ये OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया अलाइलिक। ठीक है। तो सेकेंड वाला हुआ सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। अब थर्ड वाला, वापस OH एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच है, 1 2 3, तो ये कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया टर्शरी। और ये OH वापस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को फर्दर अटैच है, तो हो गया अलाइलिक। तो ये हो गया टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट, अभी आपका यहाँ पे OH है जो ऐसे कार्बन को अटैच है जो एक ही और कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन को सिर्फ एक ही और कार्बन अटैच है, बाकी तो CH2 है, तो ये हो गया प्राइमरी। और OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है जो फर्दर बेंजीन रिंग को अटैच है, तो हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, तो ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। लास्ट वाला, अब ये OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो 2 डिफरेंट कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन को देखो 1 2, सो ये कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन को अटैच है, तो हो गया सेकेंडरी। और OH आपके CH3 को sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है वाया बेंजीनिक, मतलब बेंजीन रिंग को अटैच है वाया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो हो गया बेंजाइलिक। तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो वापस मैं आंसर बताती हूँ। फर्स्ट वाला है प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकेंड वाला है सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, थर्ड वाला है टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल, फोर्थ वाला है प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, और लास्ट वाला है सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल।
नेक्स्ट, ethers are classified as symmetrical ethers or unsymmetrical ethers. Okay, symmetrical ethers means simple ethers and unsymmetrical ethers means mixed ethers, depending on whether the two alkyl or two aryl groups bonded to oxygen atom are same or different. So we have seen that oxygen को दोनों तरफ दो डिफरेंट आर प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जब ये दोनों आर, क्योंकि ऑक्सीजन दो आर को ज्वाइंट है, तो जब ये दोनों आर डिफरेंट होंगे तब वो होगा मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर, और जब दोनों आर सेम होंगे तब होगा सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर. सो सिमेट्रिकल ईथर में दोनों आर ग्रुप सेम होने चाहिए. तो देखो यहाँ पे दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो ये सिमेट्रिकल है, या फिर दोनों तरफ CH3 है तो ये सिमेट्रिकल है, या फिर सिंपल है. अनसिमेट्रिकल मिक्स में आप देख सकते हो ओ के एक तरफ CH3 है, दूसरे तरफ C2H5 है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड, क्योंकि दो अलग ग्रुप मिक्स हो गए हैं इस ऑक्सीजन में. नेक्स्ट, इसमें देखो एक जगह बेंजीन रिंग है, एक जगह CH3 है, तो वापस ये हो गया अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर. तो ईथर का क्लासिफिकेशन दो टाइप में है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल इज ऑल्सो नोन एज सिंपल ईथर, अनसिमेट्रिकल इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ईथर. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर. सो अभी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स. तो नेमिंग देने के पहले हम पहले अल्कोहल की नेमिंग के बारे में जानेंगे. तो अल्कोहल का नेमिंग होता है एल्केनॉल से. तो अल्कोहल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केनॉल्स. ठीक है, अल्कोहल्स को क्या बोलते हैं? अल्केनॉल्स. इसका मतलब E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL. आपको क्या करना है, पैरेंट जो भी कंपाउंड होगा आपका पैरेंट अल्केन, उसका E को OL से रिप्लेस करना है. जो भी पैरेंट अल्केन होगा उसका E को किससे रिप्लेस करना है? OL से. ठीक है, यदि आपके पास एक ही OH है आपके अल्कोहल में तो आपको मोनो वर्ड यूज नहीं करना है, पर जब दो OH होगा तो आपको डाई वर्ड यूज करना है. दो OH के लिए आप वर्ड यूज करोगे डाई, तीन के लिए आप यूज करोगे ट्राई, ओके, एंड सो ऑन. बट जब एक रहेगा कोई वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ. तो पहला, इसमें OH इज अटैच टू दिस कार्बन, और एक ही कार्बन है तो आपका ये एक कार्बन हुआ मतलब मीथेन. वन कार्बन मतलब मीथेन, बट पैरेंट नाम की E को रिप्लेस करोगे OL से तो हो जाएगा मीथेनॉल. तो देखो यहाँ हो गया मीथेनॉल, E को रिप्लेस कर दिया मैंने OL से, और इसे उसका कॉमन नेम है मिथिल अल्कोहल. नेक्स्ट वाला, अब वापस इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2. नंबरिंग आपको शुरू करना है उस कार्बन से जहाँ पे यहाँ पे OH है. देखो सब रूल सेम रहेंगे. आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करना है. सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करोगे. सेकेंड थिंग, आपको नंबरिंग इस तरह से देना है कि आपके OH वाले ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए. ठीक है, आपका OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए. तो मैं नंबरिंग उल्टा भी दे सकती थी, CH3 को 1 और CH2 को 2, बट OH तो CH2 को अटैच है तो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर नहीं आया, इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से दिया कि CH2 को 1 और CH3 को 2, कि OH जिस कार्बन को अटैच है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. तो ये हो जाएगा दो कार्बन है इसलिए इथेन, और E को रिप्लेस करोगे OL से तो हो गया इथेनॉल, और इसे कहते हैं इथिल अल्कोहल 2. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 3 कार्बन का है तो मैं नंबरिंग यहाँ CH3 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ और CH2 से भी, बट मैं नंबरिंग CH2 से स्टार्ट करूँगी क्योंकि OH उस कार्बन को अटैच है इसलिए उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए. इसलिए ये हो गया 1 2 3, और ये अभी 3 है तो प्रोपेन, और उसके E को रिप्लेस कर दोगे OL से तो हो गया प्रोपेनॉल, बट OH फर्स्ट वाले कार्बन को अटैच है इसलिए हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल. इथेन और मीथेन में आपको 1 या 2 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि OH किधर भी अटैच हो वो 1 ही रहेगा, करेक्ट. इसलिए फिर इसमें आपको 1 2 नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है. बट प्रोपेन से आपके 1 2 3 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है और इसलिए आप यहाँ पे यूज करोगे प्रोपेन 1 ऑल, और इसे कॉमन नेम में कहते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये एन प्रोपाइल ग्रुप है और ये अल्कोहल है इसलिए एन प्रोपाइल अल्कोहल.
नेक्स्ट वाला वापस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करोगे, तो ये हुआ 1 2 3, ये 3 ही हुआ, और ऐसे जाओगे तो 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपका ये है 1 2 3 4, करेक्ट। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, दैट इज ब्यूटेन इज योर मेन पैरेंट कंपाउंड। ब्यूटेन क्या हुआ आपका मेन पैरेंट कंपाउंड। अब नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग में यहाँ से भी शुरू कर सकती हूँ या यहाँ से भी, बट सपोज मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी तो मेरे कार्बन जिसको OH अटैच है उसको 3rd नंबर आ रहा है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर नहीं है। बट यदि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी तो मेरे कार्बन जिसको OH अटैच है उसको 2nd नंबर आ रहा है, जो 3 से कम है, इसलिए मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूँगी क्योंकि OH वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा पेरेंट कंपाउंड ब्यूटेन, उसके ई को रिप्लेस करो OL से तो हो गया ब्यूटेनॉल, और 2nd पोजीशन पे OH है इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट सेम थिंग आपको यहाँ पे करना है। अभी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज करोगे तो आप कहीं से भी करो, देखो आप ऐसे काउंट करो या सीधा काउंट करो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो 3 ही कार्बन का है, करेक्ट। तो अभी आप ऐसे नंबरिंग दोगे और यहाँ से नंबरिंग शुरू करूंगी क्योंकि ये वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, तो ये हो गया 3। तो अब हुआ 3 मिथिल प्रोपेनॉल, सॉरी 2 मिथिल प्रोपेनॉल, 2nd पोजीशन के कार्बन पे CH3 है, तो ये हो गया 2 मिथिल प्रोपेनॉल। तो आप ये भी लिख सकते हो 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, नो इश्यूज, ठीक है। 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, और इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि इस ग्रुप को कहते हैं आइसोब्यूटिल ग्रुप, और उसको OH है इसलिए आइसोब्यूटिल अल्कोहल। नेक्स्ट में वापस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आप ऐसे चूज करो कि स्ट्रेट चूज करो, 3 ही है, करेक्ट। तो इसका पेरेंट कंपाउंड अगेन प्रोपेनॉल ही है, करेक्ट। अभी नंबरिंग देना है 1 2 3, तो वापस हुआ ये 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि OH भी 2nd पोजीशन पे है इसलिए 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट वाला ये एग्जाम्पल, इसमें यहाँ 1 2 कहीं से भी नंबरिंग आप शुरू कर सकते हो क्योंकि दोनों भी कार्बन सेम इन नेचर है, तो 1 2 हो गया। तो ये हुआ इथेन, मेन तो कंपाउंड है इथेन, अब इसकी ई को रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि डायोल है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इथेन 1 2 डायोल, तो इट इज इथेन क्योंकि पेरेंट कंपाउंड इथेन है, दोनों पोजीशन पे OH है इसलिए 1 2, और ये हो गया डायोल। अब नेक्स्ट, अब नंबरिंग दो 1 2 3, आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो, इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से सेम है, इट इज अप टू यू कहाँ से आपको नंबरिंग शुरू करना है। तो आप देख सकते हो आपको OH ग्रुप 1 2 3 तीनों पोजीशन पे प्रेजेंट है और 3 पेरेंट कार्बन से, सो इट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, 3 OH है इसलिए। नेक्स्ट, अभी आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, आपके पास इथीन भी, मतलब ये डबल बॉन्ड भी है, और आपके पास OH भी है, ठीक है। आपके पास डबल बॉन्ड प्लस OH दोनों भी है, तो आपको नंबरिंग शुरू करना है इस वाले कार्बन से जिसमें OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो ये वाले कार्बन से मैं नंबरिंग शुरू करूँगी 1 2 3 4। आपको याद रखना है यहाँ पे OH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आपको ऐसे वाले कार्बन से हमेशा नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा जहाँ पे OH वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 2nd कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है इसलिए 2 इन, तो ब्यूट क्यों हुआ क्योंकि 4 कार्बन है। 2 इन क्यों हुआ क्योंकि 2nd नंबर के कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, और OH 1st नंबर के कार्बन को अटैच इसलिए 1 ऑल, सो इट इज ब्यूट 2 in 1 ऑल। I hope you must have understood. If not, you can ask your doubts. Okay? Next, अभी जब आपका OH बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो उसका जो आयोपेक नेम है वो सिस्टम है बेंजेनॉल, ठीक है। जब वो बेंजीन रिंग को अटैच है तब उसका आयोपेक सिस्टम में उसका नेमिंग होता है बेंजेनॉल, ई को रिप्लेस करेंगे बेंजीन के OL से, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं बेंजेनॉल या फिनॉल। तो पेरेंट कंपाउंड क्या होता है बेंजेनॉल या फिनॉल, ठीक है। अभी नेक्स्ट, OH के जो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे 1 2, आप नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको क्लॉकवाइज ही नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपके 2nd सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग शुरू करोगे तो आपके जो CH3 है उसको नंबर 5 आएगा, जो गलत है।
क्योंकि आपके सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। इसके वजह से आपको यहाँ पे नंबरिंग क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा, जिससे आपको CH3 पे सेकेंड नंबर आए। तो ये हो जाएगा 2 मिथिल फिनॉल। फिर वापस अब यहाँ पे नंबरिंग आप क्लॉकवाइज करो कि एंटी क्लॉकवाइज करो, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके इस वाले कार्बन को 4 नंबर ही आएगा, मतलब नाइट्रो हमेशा 4 पे ही प्रेजेंट होगा, वेदर यू डू नंबरिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैटर नहीं करता है। तो ये 4 नंबर पे नाइट्रो है तो हो जाएगा 4 नाइट्रो फिनॉल। नेक्स्ट, अब ये 2 OH है जो 1 and 2 पोजिशन पे प्रेजेंट है, तो और बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट है, तो बेंजीन 1,2 डायोल। नेक्स्ट, वापस बेंजीन रिंग पे 2 OH है पर वो 1,3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायोल। वापस 2 OH है बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट बट 1,4 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल। अब वापस 3 OH है बट वो 1, 3, 4, 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1, 3 and 5 पोजीशन पे, हो जाएगा बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। ठीक है, वापस 3 OH प्रेजेंट है बट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रेजेंट कहाँ पे है 1, 2, 3, 1, 2, 6 पोजीशन होना चाहिए। ओके ओके, सो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग दोगे कि सारे OH वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। ये रूल याद रखो, मेन फंक्शनल ग्रुप में हमेशा सारे वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। जो मैंने अभी नंबरिंग की थी उसमें आपके नंबरिंग आ रहे थे 1, 2 and 6, जिससे आपका जो लास्ट वाला कार्बन उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर नहीं आ रहा था, करेक्ट। इसलिए आपको नंबरिंग इस तरह से ही करना है जिससे सारे वाले कार्बन्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आए। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल। तो इस तरह से आप नेमिंग दोगे। तो जब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो फिनॉल के पेरेंट कंपाउंड रहेगा, और जब आपके OH ही प्रेजेंट है सारे बेंजीन रिंग में तो बेंजीन मेन कंपाउंड रहेगा, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस, और डायोल फॉर 2 OH एंड ट्रायल फॉर 3 OH। नेक्स्ट ये है दैट इज ईथर्स। तो ईथर्स का जो मेन आयुपेक नेम है वो है अल्कोक्सी अल्कीन, वो है अल्कोक्सी अल्कीन। तो ये आपका जो मेन नेम है ईथर का, अल्कोक्सी अल्कीन। अब याद रखना है आपके ऑक्सीजन के दोनों तरफ कोई ना कोई R ग्रुप है, करेक्ट, दोनों तरफ कोई ना कोई R ग्रुप है। तो किसे आप पेरेंट पकड़ोगे, जो R ग्रुप लंबी होगी या जो R ग्रुप की चेन बड़ी होगी उसे आप पेरेंट पकड़ोगे। जो भी R ग्रुप लंबा होगा या उसकी चेन बड़ी होगी उस R ग्रुप को आप क्या पकड़ोगे, पेरेंट अल्कीन। और जो दूसरा वाला R ग्रुप है जो स्मॉल है उसको आप पकड़ोगे अल्कोक्सी ग्रुप में। ठीक है, तो अल्कोक्सी अल्केन में अल्कोक्सी कौन है और अल्केन कौन है, जो बड़ा वाला है वो है अल्केन, जो छोटा वाला R ग्रुप है वो है अल्कोक्सी, ये समझ लो। ठीक है, इसलिए आपका ईथर का नेमिंग होता है अल्कोक्सी अल्केन, और जो बड़ा वाला R ग्रुप होता है वो होता है खुद पेरेंट अल्केन, और जो छोटा वाला होता है वो होता है अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये आपका जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें तो दोनों भी CH3 सेम है, दोनों भी ऑक्सीजन की तरफ वाले ग्रुप सेम है, इसलिए आप किसे भी अल्कोक्सी पकड़ो किसे भी अल्केन। तो अल्कोक्सी अल्केन मतलब ये हो जाएगा मिथॉक्सी, क्योंकि CH3O, सो इट इज मिथॉक्सी, और यहाँ पे पेरेंट है मीथेन, एक ही कार्बन है, तो इट हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो आपको समझ गया होगा अल्कोक्सी अल्केन से मेरा क्या मतलब है। OXY तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके उस ऑक्सीजन को एक ही कार्बन अटैच है तो मीथे, मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन ब्यूटॉक्सी एंड सो ऑन। और पेरेंट तो आपको पता है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, तो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों भी चेन इक्वल है साइज में, इसलिए आप किसे भी पकड़ो, इसको मैंने अल्कोक्सी पकड़ा है इसलिए मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो दोनों तरफ R ग्रुप डिफरेंट है, ये R ग्रुप लॉन्ग है चेन में तो ये होगा मेरा पेरेंट अल्केन, और ये शॉर्ट है तो ये हो जाएगा अल्कोक्सी। तो ये हो जाएगा एक ही कार्बन है OH को अटैच तो मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है अल्केन में इसलिए इथेन, सो इट इज मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट वाले में वापस एक साइड स्मॉल चेन है एक साइड लॉन्ग चेन, जो लॉन्ग चेन है वो वापस हो जाएगा मेरा पेरेंट, और जो स्मॉल चेन है वो हो जाएगा अल्कोक्सी, सो इट इज अगेन मिथॉक्सी प्रोपेन।
तो आप बोलोगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो प्रोपेन चेन के फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, करेक्ट। सो 1 2 3 पेरेंट वाले को नंबरिंग दे दो तो आप देखोगे कि मिथॉक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन ऑफ प्रोपेन को अटैच है, इसलिए हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट वाला वापस देखोगे आप, दो अलग अलग चेन है, बेंजीन इज लार्जर देन दिस, सो बेंजीन इज द मेन कंपाउंड, ये हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट इसमें देखोगे वापस ये बेंजीन 6 कार्बन है, तो वापस ये लॉन्गेस्ट है, तो ये हो जाएगा मेन, और ये हो जाएगा आपका साइड चेन, तो इट इज प्रोपॉक्सी बेंजीन। और आपको याद रखना है बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन में 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड, अब इसमें आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप ऐसे नंबरिंग दोगे 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4, तो ये हो गया आपका मेन जो है वो 4 कार्बन का ब्यूटेन, पर वो साइक्लिक है इसलिए साइक्लोब्यूटेन, ये मेन कंपाउंड है आपका, क्योंकि साइक्लिक इन नेचर इसलिए हो गया साइक्लोब्यूटेन। और सेकेंड पोजीशन पे मिथॉक्सी इसलिए 2 मिथॉक्सी, 1 पोजीशन पे 2 मिथिल ग्रुप इसलिए 1 1 डाई मिथिल साइक्लोब्यूटेन, तो इट इज 2 मिथॉक्सी 1 1 डाई मिथिल साइक्लो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो ये तीनों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन है 2,5 डाई इथिल फिनॉल, तो आपको पहले फिनॉल ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज OH बेंजीन, और उसके सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे डाई इथिल, मतलब 2 इथिल ग्रुप लगाओ। तो देखो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे आपका इथिल ग्रुप है, तो ये हो गया फिनॉल बेसिक, और उसके सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे आपने लगा दिया इथिल, तो हो गया 2,5 डाई इथिल फिनॉल। नेक्स्ट है प्रोपेन 2 in 1 ऑल, तो इसको स्टेप वाइज जाना है, ठीक है। तो स्टेप वाइज के लिए प्रोप लिखा है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो आप पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर लो, आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो प्रोप है इसलिए 3 कार्बन, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग पहले कर लो। तो आप सपोज यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हो 1 2 3, तो सेकेंड वाले कार्बन पे से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो डबल बॉन्ड ऐसे होगा। यहाँ पे नहीं दे सकते हो क्योंकि वो 2 बोला है, 1 नहीं बोला है, ठीक है। तो 2 इन के वजह से मैंने सेकेंड वाले कार्बन पे दे दिया डबल बॉन्ड, और 1 ऑल मतलब 1 पोजीशन पे OH है, तो फर्स्ट वाले कार्बन को आपको OH अटैच करना है। तो इस तरह से स्टेप वाइज जाना है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 2 इन मतलब डबल वाला बॉन्ड शुरू, डबल वाला बॉन्ड है सेकेंड कार्बन पे, 1 ऑल मतलब OH अटैच है फर्स्ट कार्बन को। अब इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करो, तो यहाँ पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा 1 हाइड्रोजन, और इसको अगेन आएगा 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो स्टेप वाइज जाना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो मेन कंपाउंड आपका क्या है, मेन पेरेंट कंपाउंड है प्रोपेन, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। फिर साइड वाला है मिथॉक्सी, तो ये हो गया OCH3 दैट इज मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी अटैच है सेकेंड कार्बन ऑफ प्रोपेन, इसलिए हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सो 1 2 3, तो आप देख सकते हो आपको OCH3 कहाँ पे अटैच होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन ऑफ प्रोपेन, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट इज फिनिल मिथेनॉल, सो ये हो गया फिनिल और ये हो गया मिथेनॉल, तो ये हो गया फिनिल मिथेनॉल। नेक्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर्स का आयुपेक नेम लिखना है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर है, तो आप उसमें पहले नंबरिंग शुरू करोगे, तो आपको नंबरिंग इस तरह से शुरू करना है कि जिस कार्बन को OH अटैच है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो आप नंबरिंग शुरू करते वक्त यहाँ से ही करोगे, क्योंकि इस वाले कार्बन को OH अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे 2 2 OH है, तो 1 1 डायोल, साइक्लोपेंटेन 1 1 डायोल। नेक्स्ट ये है ईथर, तो आपको देखना है पेरेंट कौन है और अल्कोक्सी कौन है, तो ये जो लंबा चेन है वो पेरेंट है और ये अल्कोक्सी है, तो आप अल्कोक्सी को सर्कल कर लो, तो ये हो गया इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन O है, तो ये हो गया इथॉक्सी, और आपका पेरेंट है 4 कार्बन्स का, तो ये हो गया ब्यूटेन। आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर सकते हो या यहाँ से, पर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा जो ये अल्कोक्सी ग्रुप है उस वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। यदि मैं नंबरिंग दूसरे साइड से शुरू करूँ, तो उस वाले कार्बन को जिसको आपका अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है उसको 3 नंबर आ रहा है, करेक्ट। देखो
यदि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो फिर मेरा जो जहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है उसको 3 नंबर आ रहा है, बट सपोज मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मेरे अल्कोक्सी वाले ग्रुप को 2nd नंबर आ रहा है, तो कौन सा लोएस्ट नंबर है, ये वाला। इसलिए मैं ये वाला नंबरिंग का मेथड यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अल्कोक्सी ग्रुप को ज़्यादा नंबर आ रहा है, बट ये वाला यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अल्कोक्सी वाले कार्बन को कम नंबर आ रहा है। इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2nd पोजीशन पे है आपका अल्कोक्सी, तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो आप देख सकते हो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट इसका है, तो इसमें आप देख सकते हो ये हो जाएगा 2 फिनिल इथेनॉल, इसकी तरह ये देखो फिनिल मिथेनॉल, सेम ये है फिनिल इथेनॉल, पर इथेनॉल के 2nd पोजीशन पे OH है क्योंकि 1st पोजीशन पे फिनिल रिंग है, 2nd पोजीशन पे OH है, तो ये हो जाएगा 2 फिनिल इथेनॉल। नेक्स्ट ये वाला देखोगे तो ये आपका मेन कंपाउंड है फिनॉल, करेक्ट। अब नंबरिंग दो 1 2 3, मैं नंबरिंग ऐसे ही दूंगी क्योंकि मैं नंबरिंग यहाँ से उल्टे साइड से दूं तो मेरे CH3 वाले कार्बन को ज़्यादा नंबर आ रहा है, करेक्ट। तो मुझे नंबरिंग ऐसे ही देना है जिससे मेरे CH3 वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आए, तो मैं नंबरिंग ऐसे दूंगी तो हो जाएगा 3 मिथिल फिनॉल। और इस तरह से आप सारे कंपाउंड्स के नेमिंग कर सकते हो। Still after this, if you have any doubt, any comment, any suggestion, you can do that on askcrdoubts04@gmail.com. Even you can ask me doubts, comment and suggestion in the comment box given below. So that's all for today. Thank you. If you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And better luck for your studying. Keep studying, okay? And before departing, we can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. And that's all for today. Thank you.